خداوند کے عظیم اور جلالی نام میں پاسٹر عارف اقبال کی طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو۔ میرا تعلق ایکٹ گاسپل منسٹریز کے ساتھ ہے اور میں خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آج ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم اس کے قدموں میں جھکیں، اس کے کلام کو سیکھیں۔ سو آئیے وقت ضائع کیے بغیر ہم کلام مقدس کو کھولیں۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا۔ دیکھ میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے تلک سے آتی ہے۔ کیا خداوند صہیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا۔ میں کڑتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا۔ کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس کے اس حصہ میں سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس حوالہ میں کون سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس کی طرف یسایہ نبی زور دیتا ہے۔ اگر ہم اس حوالے کا بغور مطالعہ کریں تو یہاں پر کہتا ہے، یرمیہ کہتا ہے، اس کا جو عنوان اس نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ یرمیہ اپنے لوگوں کے لیے غم کرتا ہے۔ اس کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے درد ہے، اس کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے ایک جذبہ ہے، احساس ہے۔ اور اگر ہم اس حوالے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور آگے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یرمیہ نبی پریشان ہے۔ اگر آپ دیکھیں 18ویں آیت میں تو کہتا ہے کہ کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا۔ دیکھ میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے۔ یرمیہ کہتا ہے کہ میرے لوگ جو قیدی ہیں، میرے لوگ جو دکھ میں ہیں، میرے لوگ جو درد میں مبتلا ہیں، وہ کیوں شفا نہیں پاتے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ دوسرے ملک میں ہیں، لیکن ان کی درد کی آواز، ان کی آہ و نالہ کی آواز مجھے یہاں تک میں محسوس کر سکتا ہوں۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اور آگے پڑھیں تو کہتا ہے، کیا خداوند صہیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ اب یہاں پر یرمیہ نبی جو ہے وہ ریزن بتا رہا ہے، وہ وجہ بتا رہا ہے کہ وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے ناراض ہے۔ کیوں خدا ان پر غضبناک ہوا ہے؟ کیوں خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے؟ یہاں پر اب بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا خداوند صہیون میں نہیں؟ کیا ان کا بادشاہ ان کے درمیان موجود نہیں ہے؟ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں ہر ایک چیز میں پہلا درجہ جو ہے وہ خدا کو دینا ہے۔ خدا کا درجہ ہماری زندگیوں میں اول درجہ ہونا چاہیے، اس کے بعد سب کچھ۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے کام کاجوں میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں، ہم اپنے زندگی میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم خدا کو بھول چکے ہیں۔ ہم خدا کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، اور پھر جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں، جب ہم تکلیف میں پڑتے ہیں، جب ہمیں مشکل ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں
कि क्या खुदा तू हमारी क्यों नहीं सुनता। फिर हम गिला करते हैं कि खुदावन तू हमें जवाब क्यों नहीं देता। लेकिन यहां पर यिर्मयाह बड़ी खूबसूरत बात करता है, वो वजह बताता है कि क्यों खुदा ने हमें छोड़ दिया है। वो कहता है, उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों और बेगाना मबूदों से मुझको गजब ना किया। तराशी हुई मूर्तें, बेगाना मबूद, ये आज जरूरी नहीं कि हम एक बुत बनाकर रखें तो वही तराशी हुई मूर्त हमारे लिए होगी। हमारी जिंदगी में हर वो चीज जिसे हम खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं वो एक तराशी हुई मूर्त की हैसियत रखती है। उसमें हम रुपया पैसा कह सकते हैं, उसमें हम खानदान को कह सकते हैं, उसमें हम बीवी बच्चों को कह सकते हैं, उसमें हम रिश्तेदारों को कह सकते हैं। हर वो काम जिसे हम खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं वो हमारे लिए एक तराशी हुई मूर्त है। इसलिए यिर्मयाह कहता है कि फसल काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के अयाम तमाम हुए और हमने अभी तक रिहाई नहीं पाई। अभी तक हम अपने गुनाहों में फंसे हुए हैं, अभी तक हम अपने गुनाहों की दलदल में धंसे हुए हैं, क्योंकि अभी तक हमने खुदावन को पुकारा नहीं है। खुदावन ज़बूर की किताब में कहता है कि तू मुझे पुकार तो मैं आसमान पर से सुनकर तुझे जवाब दूंगा। खुदावन हर वक्त हमारी दुआ सुनने के लिए तैयार है, खुदावन हर वक्त हमें जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या है कि हम उसकी तरफ आते नहीं हैं। और यहां पर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यिर्मयाह कहता है, मैं अपनी बिनते कौम की शिकस्तगी के सबब से शिकस्ता हाल हुआ, मैं कुढ़ता रहता हूं, हैरत ने मुझे दबा लिया है। यहां यिर्मयाह अपने दुख का इजहार करता है अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, जो उसके दिल में दर्द है, जो उसके दिल में मोहब्बत है, उसका इजहार करता है। वो कहता है कि अभी तक क्यों मेरी बिनते कौम ने शिफा नहीं पाई, अभी तक क्यों मेरी कौम जो है वो गैर मबूदों के पीछे भाग रही है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कहता है, क्या जिलाद में रोगने बिलसान नहीं, क्या वहां कोई तबीब नहीं, मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती। बिलसान का दरख्त जो था वो कहते हैं कि इसमें एक नेजा मारा जाता था और उसमें से जो रोगन या ऑयल निकलता था वो खास तौर पर बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यिर्मयाह यहां पर कहता है कि क्या जिलाद में रोगने बिलसान नहीं है, क्या वो रोगने बिलसान जो है वो खत्म हो चुका है, क्या वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है। वो कहता है कि मेरी कौम, मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती। अगर आज के दौर में हम देखें तो हम लोग क्यों अपने गुनाहों से शिफा नहीं पाते, क्यों हम अपनी बीमारियों में फंसे हुए हैं। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान नहीं किया? क्या खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर था उसके हाथों और पांव में कील ठोके गए, उससे जो खून बहा वो हमारी बीमारियां धोने के लिए काफी नहीं है? फिर क्यों हम अपनी बीमारियों में फंसे हुए हैं, क्यों हम अपनी बीमारियों से शिफा नहीं पाते? इसलिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर, हम खुदावंद यीशु मसीह को भूलकर हम इस दुनिया के कामों में उलझ गए हैं, हम इस दुनिया के कामों में फंस चुके हैं। मेरे अजीजों, अगर आज आप अपने गुनाहों से मखलसी हासिल करना चाहते हैं, अगर आज आप अपने गुनाहों से रिहाई पाना चाहते हैं, अगर आज आप अपनी बीमारियों से शिफा पाना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आ जाए, अपनी जिंदगी उसको दे दें, उसको कहें कि ऐ खुदावंद, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, तेरा लहू जो तूने कोहे कलवरी पर मेरे गुनाहों के लिए बहाया वो मेरे लिए काफी है। और देखें, आप यकीन माने, जब आप अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे, उसके खून को अपने ऊपर ले लेंगे, तो आप हर तरह की बीमारियों से बच जाएंगे, आप हर तरह के
दुखों से, रोगों से, गुनाहों से बच जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान ले, उसके उस खून को जो कोहे कलवरी पर बहा अपने ऊपर ले ले। खुदावंद यीशु मसीह जो तबीबों का तबीब है, जिसके कहने से लंगड़े चलते, जिसके कहने से 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र में से बाहर आ जाता है, जिसके कहने से अंधों की आंखें खुलती हैं, जिसके कहने से 38 साल का बीमार अब उठकर चलने फिरने लगता है, क्या वो आज आपको शिफा नहीं दे सकता? क्या वो आज आपकी बीमारी को दूर नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हमें देखने की जरूरत है कि हमारा ताल्लुक उसके साथ कैसा है। खुदावंद आज हमें यह सबक देता है, यह सिखाना चाहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ जा, मेरे कदमों में आ जा, तो मैं तुझे शिफा दूंगा। वो कहता है, ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ ताकि मैं तुमको आराम दूं। आखिर में मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। नामे बाब की, यिर्मयाह नामा बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, काश के मेरा सर पानी होता, काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिनते कौम के मकतूलों पर शबो रोज मातम करता। आज मैं यिर्मयाह के साथ मिलकर आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आज मेरा दिल अपने लोगों के लिए रोता है, आज मेरा दिल अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ कुड़ता है कि मेरे लोग क्यों आज भी गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि आप उसके कदमों में आ जाएं, आप अपनी जिंदगी उसको दें, तो देखें खुदावंद किस कदर आपको बरकत देगा। खुदावंद आप सबको और मुझे आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।